Okay, so next is atmosphere. Okay, so if you look into the atmosphere that is made of mixture of gases. Okay, atmosphere क्या है? Simply mixture of gases है. मैक्सिमम अमाउंट में इसमें सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी होती है? दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन दैट कंस्टिट्यूट 78%, देन 21% is O2, okay, and less than 1% that is argon, CO2, helium, lithium, all these gases, okay. So they constitute less than 1%, okay. So major amount, सबसे ज़्यादा amount में कौन सी है? नाइट्रोजन. Got it? So now what is the work of the atmosphere in making Earth as a home of the humankind? Okay, so basically atmosphere work as a shield. Okay, अब इसमें इनकमिंग जो सोलर रेडिएशंस जो आती है, इट हेल्प्स इन वार्मिंग द प्लैनेट. जो अर्थ को वार्म करने में ये हेल्प करती है. ओके, सो एज अ रिजल्ट अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. अगर एटमॉस्फेयर अर्थ पर नहीं होता तो ड्यूरिंग द डे टाइम द अर्थ वुड बी जस्ट लाइक यू कैन से hot planet. Okay, it would be not suitable for the life to survive, and in the night it would be a freezing planet. Okay, night की समय पूरा freezing होता और डे टाइम पूरा बहुत ज़्यादा hot होता. Okay, so just life on Earth is possible just because of life supporting gases like oxygen, CO2, all these. Okay, as well as one of the most important you can say ozone layer. Okay, ozone layer भी atmosphere में present होती है, and basically ozone layer protect the earth from ultraviolet radiation. Okay, अब ये solar radiation से जो UV radiation अर्थ पर आते हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करती है? एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर जो होती है. ठीक है. ओके, सो एज अ रिजल्ट बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या करता है? एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है दैट शुड बी सुटेबल फॉर द लाइफ फॉर्म टू एग्जिस्ट. ओके, अब ये अर्थ को वार्म करने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन करता है. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज वाटर. ओके, so if you look into the earth is called a watery planet. Okay, earth को watery planet बोला गया है. क्यों? Because more than you can say 70% of the earth is covered with the water. Okay, it is also called as a blue planet. Okay, so if you look into the distribution of the water is fairly distributed throughout the earth. Okay, 70% contain water क्या है? So fairly it is well distributed throughout the earth, and just because of distribution of water into the earth is responsible for the you can say for the survival of the species. Okay, अब अर्थ वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है? बेसिकली हीट का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ओके, अभी हम देखेंगे कि बेसिकली हाउ द वाटर कैन एक्ट एज अ एब्जॉर्बर ऑफ अ हीट एंड व्हाट इज इट्स function. Okay, so first look into the, before that we are going to look into the hydrological cycle. Okay, सबसे पहले हम ये देखेंगे hydrological cycle. Okay, so basically if you look into the hydrological cycle, the water is basically all the surface water as well as ground water that is concentrated on the earth it is situated in the oceans, river, lakes, pond, as well as some amount as a groundwater. Okay, so these are the sun rays. When the sun rays reach the ocean surface, there is evaporation of water. The water from the ocean surface will evaporate, and then when it will goes into the atmosphere, हमने atmosphere में पढ़ा था कि basically temperature क्या होता है? डिक्रीज होता है हाइट के साथ. एज अ रिजल्ट यहाँ क्या होगा? कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन, देन क्लाउड फॉर्मेशन. ओके, एंड देन अगेन क्लाउड फॉर्मेशन के बाद प्रिसिपिटेशन होगा. प्रिसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ रेन्स, एंड ये रेन से फिर वाटर किधर आ जाएगा? अगेन सरफेस पर आ जाएगा. ओके, और ये कंटिन्यूस पूरी एक साइकिल चलते रहेगी. ओके, सो ये सरफेस वाटर है. सरफेस वाटर से क्या हुआ? इवोपरेशन हुआ. इवोपरेशन से एटमॉस्फेयर में जैसे जाएगी, जैसे ऊपर जाएगा वाटर, तो क्या होगा?
टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ कंडेंसेशन, देन अगेन प्रेसिपिटेशन एंड अगेन इट रीचेस एज अ ग्राउंड वाटर। सो बेसिकली ये इससे क्या होता है, एक कंटिन्यूस साइकिल चल रही है। एंड द वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, जितना अमाउंट वाटर का है उतना ही रहेगा। मैटर्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, गॉट इट। सो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। अब बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ये जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अर्थ सरफेस पर है, इसका एडवांटेज क्या है, इससे क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम पर तो ठीक है, अर्थ पर सुटेबल टेम्परेचर के लिए सनरेज अवेलेबल रहती है, बट ड्यूरिंग द नाइट, डे टाइम में ये क्या करता है, बफर, इट एक्ट एज अ हीट बफर, इट एब्सॉर्ब द सन रेज। ओके, सन से जितनी भी रेडिएशंस आती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम्स, दिस वाटर बॉडीज एब्सॉर्ब द हीट एंड ड्यूरिंग द नाइट, अब नाइट में सनरेज नहीं होती हैं, एज अ रिजल्ट बेसिकली ये क्या करता है, ये इवोपरेट, रिलीज करता है, जो भी हीट एब्सॉर्ब किया है उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग द नाइट अर्थ में बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं होता है नाइट में। क्यों नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ये वाटर बॉडीज हैं, ये इन्होंने जितनी भी एटमॉस्फेयर से सनरेज एब्जॉर्ब किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है, वो ड्यूरिंग द नाइट दे रिलीज इट। गॉट इट। सो एज अ रिजल्ट एक सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। गॉट इट। So this is advantage of water. So as a result, just because of presence of water, life is possible on the earth. Next is lithosphere. Okay, so lithosphere, that is solid crust. Okay, अर्थ का जो uppermost part है, जो solid crust, that is basically called lithosphere. Okay, so lithosphere is also responsible for the you can say possibility of the life on the earth. How? Because lithosphere से क्या होगा, weathering of the rocks, and just because of the weathering of the rock की वजह से formation of the soil. Okay, weathering of rocks results into formation of soil. Okay, so formation of soil and plants के लिए basic requirement क्या होती है, soil. Okay, so plants they act as a food for basically all the living organism on the earth. Okay, so indirectly वो सभी के लिए food, ऐसा they act as a food for all. Okay, so अब now lithosphere is basically यहाँ क्या होगा, weathering of the rock, and weathering of the rock, because of weathering of rock there will be formation of the soil. Okay, and soil contain the suitable nutrients. Okay, soil contain the suitable nutrient that is required for the growth of the plants. Okay, got it. So soil में क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा, एंड उस न्यूट्रिएंट की वजह से प्लांट्स की क्या होगी, ग्रोथ होगी, एंड इन टर्न्स अगर प्लांट की ग्रोथ होगी तो प्लांट्स पर और दूसरे हर्बीवर पर कार्निवर एंड ऑल अदर you can say organism will be responsible. Okay, so lithosphere, that is also responsible for the survival of the earth. Next is biosphere. Okay, so before biosphere we have to focus on the ecosystem. Okay, सबसे पहले हम ecosystem के बारे में पढ़ लेते हैं. Okay, ecosystem. Okay, ecosystem is basically self-sustaining as well as self-regulating body that is present on the earth. Okay, अब ये जो self-sustaining as well as self-regulating body that is present on the surface of the earth, that is known as ecosystem. Example: forest, lake, okay, oceans. These act as a ecosystem. Okay, these act as a ecosystem. Okay, इन्हें क्या बोलेंगे, ecosystem. Okay, अब ये जो ecosystem है, for example terrestrial ecosystem, forest ecosystem हो गया, और you can say aquatic ecosystem, lakes का ecosystem हो गया. इन सब में क्या हो रहा है, basically there is exchange of materials. Okay, अब basically ये self sustaining है. How? But
ये इकोसिस्टम जो है ये किस पर डिपेंडेंट है? बेसिकली इट इज डिपेंडेंट अपॉन सन फॉर ऑल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट. दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सन फॉर ऑल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट. ओके, सो फॉरेस्ट, लेक्स as well as you can say other, there is exchange of nutrient. Okay, इनमें क्या हो रहा है? There is exchange of nutrient between these you can say ecosystem. Okay, so basically exchange of nutrient between these ecosystem result into a biosphere. Okay, अब यही एक्सचेंज जो होता है डिफरेंट यू कैन से इकोसिस्टम में जो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, तो इसी से क्या बनेगा? एक बायोस्फीयर बनेगा. ओके, बायोस्फीयर बनेगा. ओके, ऑल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, दे आर टुगेदर गोइंग टू मेक अ बायोस्फीयर. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर बेसिकली मीन्स दैट जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड, air and water. Okay, this is air, land and water. Air means atmosphere. Okay, so basically this zone where they are meeting, this zone that will be known as biosphere. Okay, so a biosphere से basically हमें मिलता क्या है? Biosphere is going to provide the all the energy requirement. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी, बी इट न्यूट्रिएंट, बी यू कैन से सनलाइट, दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द बायोस्फीयर. ओके, सो बेसिकली बायोस्फीयर क्या करेगा? सभी चीज़ों की मदद करेगा और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा. व्हाट इट? So biosphere, that is also known as life zone of the earth. If you look into the biosphere, extent of biosphere के अगर देखिए तो एटमॉस्फेयर में it is extended up to 15 किलोमीटर in atmosphere. Okay, and crust पर अगर देखें, lithosphere पर देखें तो only up to depth of 3 मीटर. Okay, 3 मीटर की डेप्थ तक biosphere extend है. Okay, इफ़ यू लुक इनटू द वाटर, वाटर में अगर देखा जाए तो 200 मीटर डेप्थ तक. ओके, ओशन में जो 200 मीटर की डेप्थ तक, दैट जोन इज नोन एज बायोस्फीयर. वहाँ पे बायोस्फीयर पॉसिबल है. गॉट इट? सो बायोस्फीयर किसे बोलेंगे? दैट जोन वेयर वाटर, एयर एंड यू कैन से लैंड मीट. ओके, एक ऐसा जोन जहाँ तीनों का एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो किसको? सर्वाइवल ऑफ द लाइफ के लिए. ओके, सो जितने भी इकोसिस्टम है दैट इज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ये आपस में मिलजुल कर एक बायोस्फीयर क्रिएट करेंगे. ओके, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन द डिफरेंट यू कैन से इकोसिस्टम एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी क्रिएशन ऑफ द बायोस्फीयर. ओके.